Good morning, everyone. In chapter 5, algebraic expressions, in previous classes, we started exercise 5.3. In that, question 1 was completed, sum of polynomials, and question number 2, A, B, C, D part we have done. Okay. Now, E part was remaining. What is E part? Find the sum of polynomials. In the E part, you have to find the sum of given polynomials. Two polynomials are given here. Minus 10a cube b plus 12a square b square minus 6ab cube. And the other is 5ab cube minus 13a cube b plus 6a square b square. I told you what is the process to solve the question to find the sum. First of all, put plus sign between the polynomials in horizontal method. Then write like terms together and solve them. This was the simple process. Today I am doing it with vertical method. In vertical method, first write the polynomial given at first place. Okay, जो polynomial आपको first place पे दिया हुआ है आपको उसको लिखना है सबसे पहले. I am writing the first polynomial minus 10a cube b plus 12a square b square minus 6ab cube. I am doing the solution with vertical method. In vertical method, first of all, we write the first polynomial, then just write second polynomials like terms in one column only. Okay. 10a cube b, 10a cube b के लिए like term second polynomial में क्या होगा? Minus 13a cube b, minus 13a cube b. It is 10a cube b. Okay. Minus 13a cube b, because both are having same variable parts. Then plus 12a square b square. Here you can see a square b square is a variable part, so 6a square b square will be like term for that. So write it just under this like term. You can see I am writing like terms in one columns only, in same column, in standing line. Okay. Then minus 6ab cube. ab cube, where is it present? In other polynomial. It is 5ab cube. ab cube and ab cube both are same. Yes, good Kashish. It will be 5ab cube. It is positive, so just write positive sign here. Okay, you know with term we have to write its sign. Okay, 13 is negative, so I have written 13 here. Now you have to plus them. Whenever we have to add the polynomials, the sign of these टर्म्स ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल डजंट चेंज. जब ऐड करते हैं बेटा, तो जो सेकंड पॉलिनोमियल होता है जो हम नीचे लिखते हैं उसके टर्म्स के साइन चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज रहते हैं. ठीक है. सब्ट्रैक्शन में इनको चेंज करना होता है. आई विल टेल यू व्हेन वी विल डू द टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स. नाउ यू कैन सी a cube b and a cube b are same variable parts. I am writing them here as it is. Minus 10 and minus 13 both are negative, they will get added, it will be minus 23. Yes, good Raksha. Minus 23 a cube b. Then a square b square, the variable part is as it is. 12 plus 6 both are positive, so it will be plus 18. 12 plus 6 is 18. Okay. Then ab cube, write the variable part as it is. Minus 6 plus 5 will be minus 1. Minus 1 into ab cube. It's your choice whether you write this one or not, but you have to write here minus sign because the number which is bigger is negative. आपको पता है जब प्लस माइनस करते हैं तो जो नंबर बड़ा होता है इसका साइन आता है. 6 बड़ा है तो माइनस साइन यहाँ पे आया है. So this will be the answer for the sum of these two given polynomials. Okay, so this was E part. I hope you all have understood this. Now we will do the next topic, subtraction of algebraic expressions. Okay, because the next question in this exercise is related to this topic only. How to subtract given algebraic expressions? The same thing will happen here as addition. Subtract like terms only, unlike terms cannot be subtracted. क्या करना है सब्ट्रैक्शन में भी? जिस तरीके से एडिशन में सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड करते हैं, अनलाइक टर्म्स को वी कांट ऐड. सेम एज इन दी सब्ट्रैक्शन, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, नॉट अनलाइक टर्म्स. It will be more clear to you with one example. I am writing it here.
The example is subtract minus 3x cube plus 7x square plus 3 from 4x cube plus 2x square minus 5x. Okay, plus 1. So two polynomials are given you in the subtraction, but the statement is different. Addition में क्या होता है? एडिशन में आपको जहां भी ऐड के लिए बोला जाएगा, यू कैन राइट एनी पॉलिनोमियल एट फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस, क्योंकि एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसको किसी भी जगह लिख दिया, जो जिसका फिक्स प्लेस होगा उसे वहीं लिखेंगे। मैंने आपको जब बताया था हाउ टू कन्वर्ट स्टेटमेंट्स इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसमें मैंने बोला था जब भी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लिखा हुआ आएगा तो जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है दैट विल कम एट द फर्स्ट प्लेस, एंड जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है दैट विल कम एट द सेकंड प्लेस। ठीक है, इन द बिगिनिंग क्लासेस आई टोल्ड यू दैट. So when we will solve it, we will write the first given polynomial at first place. Okay, so it will be 4x cube plus 2x square minus 5x plus 1. I have written the second polynomial at first place. ठीक है, एडिशन में क्या कर रहे थे, जो पहले लिखा है उसको पहले नंबर पे लिखना है, जो सेकंड लिखा है उसको सेकंड नंबर पे लिखना है। बट सब्ट्रैक्शन में आपको अगर स्टेटमेंट दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अगर आ जाता है, तो फ्रॉम के बाद जो पॉलिनोमियल है दैट विल कम एट द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि इसमें से माइनस करना है। फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट वन। ओके, तो जिसमें से माइनस करना होता है दैट उसको पहले लिखते हैं, और जो माइनस किया जाता है उसको बाद में लिखते हैं। Second polynomial is minus 3x square plus 7x square, sorry 3x cube plus 7x square plus 3. Okay, now I am putting brackets over both of the polynomials. Addition में भी यही करते थे, then addition में plus sign put करते थे, यहाँ पे minus sign because we have to subtract. Okay, for the subtraction you can see the polynomial written after from I have written at first place, and the first polynomial will be written at second place. Okay, minus 3x cube plus 7x square plus 3 as it is लिख दिया, दोनों पर ब्रैकेट्स लगा दिए, और बीच में ये माइनस साइन आया है ड्यू टू सब्ट्रैक्शन। डोंट बी कंफ्यूज कि मैम दो माइनस साइन क्यों लगाए हैं। ये जो 3 के साथ माइनस है वो आपको पॉलिनोमियल में गिवन है, और जो ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस साइन लगाया है दिस इज फॉर द सब्ट्रैक्शन. ओके, now the second step is we just have to open this bracket. So write first polynomial as it is, minus 5x plus 1. first polynomial मैंने as it is लिख दिया. If we want to open this bracket then we have to multiply this minus sign with these 3 given terms. bracket के अंदर जितनी भी given terms हैं उन सभी को इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है अगर हमें ब्रैकेट ओपन करना है तो। यू नो द बोर्ड-मॉस रूल. ओके, सो 3x क्यूब विल कम एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं जिसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकेंगे. ठीक है, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इट विल बी पॉजिटिव. देन 7x स्क्वायर सेकेंड टर्म है, ये पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है, तो माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस हो जाता है, और ऐसे ही जब +3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी -3. minus and plus will be multiplied, then it will result as negative sign. Okay, you all know that, you have studied in integers. now क्या चेंज देखा आपने यहाँ पर, जो सेकंड ब्रैकेट में पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जिसके बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, उसके अंदर के तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए हैं, ऑपोजिट हो गए हैं जब हमने ब्रैकेट ओपन किया. ठीक है, देखिए ये नेगेटिव था 3, ये पॉजिटिव हो गया, ये 7 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये 3 जो है वो पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव हो गया. तो दिस विल हैपन इन सब्ट्रैक्शन ओनली, इट विल नॉट हैपन इन एडिशन. एडिशन में ऐसा नहीं हो रहा था ना, एडिशन में हम साइंस को एज इट इज लिख रहे थे. यहाँ पे माइनस साइन बाहर है तो माइनस साइन ने ब्रैकेट के अंदर के जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी के साइंस को अपोजिट कर दिया है. ठीक है, देन द नेक्स्ट टर्म we have to just write the like terms together. और अगर आप like terms को together नहीं भी लिखते हैं तो differently भी आप इनको ऐड कर सकते हैं. मैं अभी together लिख के आपको बता रही हूँ. 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब
प्लस 2x² माइनस 7x² माइनस 5x प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, वीडियो विल बी क्लियर इन सम टाइम बेटा। अक्षत, फाइंड प्रॉपर नेटवर्क एरिया। 4x³ के लिए लाइक टर्म है दिस वन 3x³। 2x² के लिए लाइक टर्म है माइनस 7x², वे आई हैव रिटन देम टुगेदर। माइनस 5x के लिए कोई लाइक टर्म नहीं है, ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें सिर्फ x प्रेजेंट हो, तो माइनस 5x अकेला ही आएगा। देन कॉन्स्टेंट्स आर प्लस 1 एंड माइनस 3। नाउ सॉल्व देम। x³ इज द वेरिएबल पार्ट, राइट इट एज इट इज। 4 plus 3 is 7. x² is the variable part, write it as it is. Plus 2 and minus 7 will be minus 5. क्यों? दोनों के साइंस ऑपोजिट है, माइनस होंगे, तो 7 में से 2 माइनस किया देन इट विल कम 5। और क्योंकि जो बड़ा नंबर है दैट इज 7 उस है, तो आंसर में भी माइनस साइन आएगा। माइनस 5x will come as it is because it has no like term, and plus 1 minus 3 will be minus 2. So this will be the answer for this एग्जाम्पल। आप इसको वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं। वर्टिकल मेथड से मैं आपको तब करवाऊंगी जब वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 3 इज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, इट्स बी पार्ट इज सब्ट्रैक्ट 2a³ plus 10a minus 10 from 4a³ plus 8a² minus 40। सो वी विल डू सेम एज जस्ट एग्जाम्पल। पहले मैं हॉरिजेंटल मेथड से आपको करके बता देती हूँ, नेक्स्ट पार्ट हम वर्टिकल मेथड से करेंगे। तो मैंने आपको बताया था whenever whatever the polynomial is written after from, it will be written at first place, so it will be 4a³ plus 8a² minus 40। ओके, इसको हमें इसमें से माइनस करना है ना, तो उसको पहले लिखना है, देन माइनस साइन। दूसरा पॉलिनोमियल क्या है 2a³ जो फर्स्ट प्लेस पे लिखा है प्लस 10a minus 10। This is the second polynomial. In the second step, we will open this bracket. So it will be 4a³ plus 8a² minus 40. You can see minus sign is there. तो अंदर की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। 2 पॉजिटिव है तो प्लस माइनस विल बी माइनस 2a²। 10a पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस 10a। 10 नेगेटिव है माइनस माइनस प्लस 10। यू कैन सी ये दोनों पॉजिटिव थे तो नेगेटिव हो गए, 10 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, साइन जस्ट ऑपोजिट हो गए व्हेन वी ओपन दिस ब्रैकेट। नाउ लाइक टर्म्स देखिए, 4a³ इट इज 2a³ एंड 2a³। ओके, a³ दोनों में कॉमन है, राइट इट एज इट इज a³। मैं वो स्टेप स्किप कर रही हूँ जिसमें हम लोग लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते थे, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। It will save your time in exams. So both are the like terms. You can see variable part is same, a³ and a³. So write it as it is. 4 minus 2 will be plus 2. अक्षत, it will be clear in बेटा आप लोग आप प्रॉपर नेटवर्क एरिया सर्च कीजिए ना, बाकी सभी बच्चों को तो क्लियर जा रहा है वीडियो। देन 8a², इसके लिए क्या आपको कोई लाइक टर्म दिख रहा है यहाँ पे 8a² के लिए? नो, a² अदर किसी भी टर्म में प्रेजेंट नहीं है, सो इट विल कम एज इट इज 8a²। ओके, सो यू कैन सी माइनस 10a। बेटा वेरिएबल्स पार्ट्स जो हैं, जिन टर्म्स में वेरिएबल प्रेजेंट है वो पहले लिखने हैं, कांस्टेंट सबसे एंड में आता है। 10a, इसके लिए क्या कोई लाइक टर्म है यहाँ पर जिसमें सिर्फ a प्रेजेंट हो? नो, तो इट विल ऑल्सो कम एज इट इज, इट विल बी माइनस 10a। देन कॉन्स्टेंट्स आर माइनस 40 प्लस 10, इट विल बी माइनस 30। माइनस 40 प्लस 10 ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, दोनों के साइन ऑपोजिट है, तो 40 में से 10 गया तो 30, क्योंकि 40 बड़ा है और वो नेगेटिव है तो इट विल बी माइनस 30। सो दिस इज द आंसर फॉर बी पार्ट। नाउ वी विल डू द सी पार्ट। सी पार्ट इज 9a³ minus 9a² plus 1 from 18a² minus 7 plus 10a³। okay, now I will do this question with vertical method। vertical method से आप subtraction किस तरीके से कर सकते हैं I will show you right now। okay,
सो वर्टिकल मेथड में भी जैसे फ्रॉम के बाद जो पॉलिनोमियल आता है हॉरिजॉन्टल में हम फर्स्ट लिखते हैं, वर्टिकल में भी यही करना है, पहले कौन सा पॉलिनोमियल लिखना है, दैट इज रिटन आफ्टर फ्रॉम. सो 18, और यू कैन से आप इसको डिग्रीज की डिक्रीजिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सबसे ज्यादा किसकी है, 10a³ पावर सबसे ज्यादा इस वाली टर्म में है, तो राइट इट 10a³ then a square plus 18a square minus 7. Okay, so it will be 10a³ plus 18a square minus 7. साइन हमेशा साथ में ही रहेगा. then you have to write the second polynomial. तो सेकंड पॉलिनोमियल के साइन हम बाद में लगाएंगे, पहले आप लाइक टर्म्स को उनके नीचे लिखेंगे. 9a³ इसके लिए लाइक टर्म है, राइट इट हेयर 9a³. देन माइनस 9a स्क्वायर इसके लिए लाइक टर्म है, a स्क्वायर सेम है दोनों में, राइट इट एज इट इज 9a स्क्वायर. ओके, देन प्लस 1, साइन को छोड़ना है अभी, 1 कांस्टेंट है वो मैंने इसके नीचे लिख दिया. अब देखिए यहाँ पे जो बाद में हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस साइन की वजह से उसका साइन चेंज हो जाता है. यहाँ भी सेम यही कंडीशन होगी, नीचे बाद में जो हमने पॉलिनोमियल लिखा है उसकी टर्म्स के जो क्वेश्चन में साइन गिवन है वो सभी ऑपोजिट हो जाएंगे. सो क्या किया, राइट द सेकंड पॉलिनोमियल एज इट इज अंडर फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड लाइक टर्म्स एक ही कॉलम में आएंगे. ठीक है, 9a³ माइनस 9a स्क्वायर प्लस 1 मैंने एज इट इज लिख दिया. उसके बाद क्योंकि जो पॉलिनोमियल बाद में लिखा जाता है माइनस साइन की वजह से उनके साइंस चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ भी साइन चेंज करने हैं. 9a³ आपको पॉजिटिव दिया हुआ है वो मैंने नेगेटिव कर दिया, 9a स्क्वायर नेगेटिव दिया हुआ है वो पॉजिटिव कर दिया, और 1 जो है वो पॉजिटिव है उसे भी नेगेटिव करना है. साइन चेंज हो गए सारे. ठीक है, नाउ 10 पॉजिटिव है, 9 नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होंगे. सो 10 माइनस 9 विल बी 1 ओनली, नो नीड टू राइट दिस. सो जस्ट राइट a³ एज इट इज, वेरिएबल विल कम एज इट इज, इट विल बी 10 माइनस 9, क्योंकि 9 अब नेगेटिव हो चुका है, ऊपर वाले साइन नहीं लेने, अब जो नीचे हमने साइन चेंज किए हैं वो लिखने हैं. ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट साइन चेंज करके भी लिख सकते हैं. देन 18 इज पॉजिटिव, 9 इज ऑल्सो पॉजिटिव, नीचे देखिए 9 के सामने पॉजिटिव साइन आ रहा है, both are positive. So 18 and 9 will be 27 and variable part is a square. Okay, and 7 नेगेटिव है, 1 भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, ऐड होंगे, 7 and 1 will be 8, और क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं so नेगेटिव साइन will be come here. So answer will be a³ plus 27a square minus 8. This will be the answer for this question. Here I have used the vertical method. आप उसको horizontal method से भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको easy लगता है और जिसमें आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है. ऐसा नहीं कि टाइम तो मैम कम लग रहा है लेकिन हमने उसको गलत कर दिया, नहीं, एक्यूरेसी होनी चाहिए. आप टाइम भी उसमें अपना कंज्यूम कर रहे हैं और फिर उसको गलत कर रहे हैं तो एग्जाम में ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो जिसमें आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है दोनों मेथड्स में से वो मेथड फॉलो कीजिए. ठीक है, सो B and C part we have done today. This was your classwork, and for your homework 28 September exercise 5.3 question number 3, A and D part you have to do in the homework. B and C part we have completed in classwork, and A and D part you have to do in the homework. Okay, thank you everyone.